Good afternoon. Welcome back. In the last 2 days, we learned indefinite tense, present indefinite tense, and past indefinite tense. In present indefinite tense, natural, journal, truth are shown. Okay? General truth. Habitual actions are shown. Likewise, in past tense, we learned that it is also habitual actions which has been done in the past. And in the past tense you have find that there are few words which tell us about the past tense, means yesterday, last, ago. So these three words are there, you can understand it is the past tense. Today we will start our journey towards future indefinite tense. So first of all I will explain you that how to recognize it when we are filling the blanks or in entrance test style or in examination test style, not translation. I will tell you about translation later on. So as I told you that there are three words which tell us about the past tense, yesterday, last, ago. Likewise here is also two words which tell us that this tense belongs to the future tense. One word is the next. But always remember there are other words which are after the next. Next Monday, next Tuesday, next month, next week, next year, next hour. Okay? Or you can find the word tomorrow. If these two words are there, it means it is future tense. For example, it will rain today. Okay? ये फ्यूचर को शो करेगा. ठीक है. और यहां पर टुमारो भी हो सकता है. टुडे or tomorrow. Future action. The second thing is that there are certain words which are used in adverb clause. Adverb clause. Which words are these? If, unless, when. If you find that there are these words, any of these words means if, unless, or when, as adverb clause in present indefinite tense. Okay? It means it is future indefinite tense. For example, if he works hard, he will pass. So this is adverb clause which starts with if. Okay? Likewise, the second sentence, unless you mend your ways, that this is adverb clause. Adverb clause with unless. So remaining part of the sentence means the other clause of the sentence will be future indefinite tense. सिंपल सी भाषा में आपको यह समझना है कि अगर सेंटेंस के अंदर नेक्स्ट टुमारो जैसे वर्ड दे रखे हैं, ठीक है, समटाइम्स यू कैन फाइंड टुडे आल्सो बट इट आल्सो शोज द फ्यूचर. अगर नेक्स्ट और टुमारो जैसे वर्ड दे रखे हैं तो आपने ये समझना है कि ये फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है. जैसे मैंने आपको उदाहरण देके बताया कि इट विल रेन टुडे, कि यह आज बारिश होगी, ठीक है, या कल बारिश होगी. तो ये जो फ्यूचर को बताने वाले वर्ड्स हैं जनरली वो होंगे. टुमारो पे ज्यादा स्ट्रेस देना, ओनली समटाइम्स यू कैन फाइंड द टुडे वर्ड. और ऐसा कोई भी कार्य, ऐसा कोई भी एक्शन जिसमें इफ, अनलेस और व्हेन जैसे वर्ड्स एडवर्ब क्लोज में दे रखे हैं. एडवर्ब क्लोज मींस, फिर लेट मी रिपीट अगेन, एडवर्ब क्लोज का अर्थ होता है कि ऐसे वर्ड जो वर्ब की विशेषता बताएं. ठीक है, जैसे वो लिखता है सुंदर,
हिंदी में बता रहा हूं बिल्कुल सिंपल भाषा में. राइटिंग ब्यूटीफुल. तो ब्यूटीफुल वर्ड इज द एडवर्ब. सिंपल एड प्लस वर्ब. इस एडी को ए डबल डी मान लो. एड प्लस वर्ब मीन्स एनी वर्ड विच एड समथिंग इन दी वर्ब. सिंपल सी बात है यार, कि कोई भी चीज जो शो करती हो कि आपकी जो वर्ब है उस वर्ब की खासियत बता रही है. ठीक है. तो एडवर्ब क्लॉज में अगर इफ दे रखा हो और अनलेस दे रखा हो या व्हेन दे रखा हो, तो जो रिमेनिंग पार्ट है सेंटेंस का वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा. आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. ओके, सो सिंपल. यू कैन आस्क एनी क्वेरीज लेटर ऑन व्हेन आई विल गिव यू टाइम टू डिस्कस. फ्यूचर को आपने, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको फ्यूचर में करें कि या इंडेफिनेट में करें. वो मैं एक दिन आपको फिर अच्छे ढंग से बताऊंगा. क्योंकि ये आज बारिश हो सकती है, आज बारिश होगी, इस तरह के. तो दोनों चीजें मैं लेटर ऑन आई विल डिस्कस विद यू. सो एट दिस टाइम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस वी आर डिस्कसिंग. फिल इन दी ब्लैंक्स के स्टाइल में हमने ये सीख लिया है. और मैं आपको अब ट्रांसलेशन, कि हाउ टू ट्रांसलेट इट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश. इसकी पहचान है आ ई ए. नहीं, इसकी पहचान है गा गे गी. मीन्स सोएगा, रोएगा, नहाएगा, आएगा, जाएगा, खाएगी, पिएगी, सोएगी. मीन्स ऐसे वर्ड्स देखने हैं आपने जो फ्यूचर को शो करते हो. फ्यूचर में वह खाना खाएगा, गा लास्ट में आया. वह पानी पिएगा, पिएगा, गा लास्ट में आया. वह दिल्ली जाएगी, गी. हम दिल्ली जाएंगे, ए. तो ये जो है हमारे गा गे गी से समाप्त होंगे. जब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा. तो आई एम रिपीटेडली टेलिंग यू दैट हु इज द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज ए पर्सन और ए थिंग अराउंड ऑल द वर्क इज बीइंग डन. कि जिसके चारों ओर काम हो रहा है वो है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद सेल और विल में से एक आएगा. ओके, ईदर वन. एंड यू नो दैट शेल आईवी के साथ, विल बाकी सबके साथ. मीन्स विद ऑल द नेम्स, जितने भी नाम है देखो सभी नामों के साथ विल आएगा. अब ये कहाँ इंटरचेंज होंगे लेटर ऑन वी विल डिस्कस वन डे. बट एट प्रेजेंट यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट इन सिंपल सेंटेंसेस आईवी प्लस शेल एंड ऑल अदर्स प्लस विल. ओके, जैसे इट विल रेन टुमारो. सिंपल सी बात है कि इट को हमने यहाँ सब्जेक्ट के रूप में, ये इट को मैंने जान पूछ के यूज किया है क्योंकि सीता मीता नीता गीता को तो आप कर ही लेंगे. यहाँ इट भी. जब इस तरह के सेंटेंस में आपको यह दिखाई दे, मैं यहाँ क्लियर करता चलूं कि व्हेन यू फाइंड दैट देयर इज नो सब्जेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, दिस काइंड ऑफ सेंटेंस may start with the it or there is or there will. Here we are starting with is this sentence with it. Okay, so it will. shall नहीं आएगा, shall I और we के साथ ही आएगा. I am repeatedly saying it. or rain. रेन इसमें वर्ब के रूप में भी यूज हो सकती है और रेन नाउन के रूप में भी यूज हो सकती है. जब हम इसका नेगेटिव कंस्ट्रक्शन करेंगे तो नेगेटिव में वही मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट शैल विल और उसके बाद नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट शैल विल में से एक, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. जैसे इट विल नॉट रेन टुमारो. ठीक है. इसी तरह जब हम इसको इंटरोगेटिव चेंज करेंगे तो इंटरोगेटिव चेंज करने के लिए इनको आपको पता ही है कि वी चेंज इंटरचेंज.
हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, यानी कि शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सो सिंपल। और अब इसको हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव करेंगे तो उस टाइम पे क्या करेंगे कि शैल विल से सेंटेंस शुरू होगा, शैल विल से सेंटेंस शुरू हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, नोट आ गया, इस तरह से हो जाएगा। मेस विल इट नॉट रेन टुमारो। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि आई के साथ हम विल लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं वो समझो। सिंपल सेंटेंस में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, ऐसा है ही नहीं कि लगाया जाए। लेकिन विल का हम यूज करते हैं किसी सर्टेनिटी के लिए, और एक ही चीज तो इस दुनिया में सर्टेन है कि मैं ठीक हूं। हर आदमी यही तो मानता है। एवरीबॉडी थिंक्स दैट ही इज राइट, सो ही ऑलवेज ट्राई टू डू आई विल, but grammatically it's wrong. When you are giving so much stress on yourself, at that time we use the will. But in simple sentence, you cannot use, you should not use, you must not use. Okay? Otherwise, the sense will be very wrong and the person can understand in other way. समझ गए? So come out of all these ego things. Be simple, be happy. Now, now it's a turn for the new words and their meanings. Such, ऐसा, such a thing happened there मीन्स ऐसी चीज वहां पर हुई, ठीक है। आज्ञा नहीं मानते, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उसको कहते हैं डिफाई। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि डिसओबे क्यों नहीं। जब सिंपल थिंग्स में आप उसको यूज करते हैं, किसी ने ऑर्डर दिया है और आप उसको नहीं मानते हैं, वो है डिसओबे। आज्ञा का उल्लंघन का मतलब है जैसे कोई कानून वहां पे बना रखा है और उस कानून का आप पालन नहीं कर रहे हैं, दैट इज द डिफाई। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। अब है इसमें होना, जैसे रिक्शा होना, तो कम ऑफ हो गया वो, ठीक है। अनलेस, अनलेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कि अनलेस वाले सेंटेंस में आपने ये याद रखना है कि अनलेस वाले सेंटेंस में हम यूज नहीं करते हैं नॉट। नॉट इज नॉट यूज्ड, नॉट इज नॉट यूज्ड, यू सी, टू नोट्स आर हियर, ठीक है। तो जब तक नहीं, unless you study hard you cannot succeed, okay, unless you change your habits you cannot achieve your desired things, ठीक है। तो अब किसी जैसे सीट खाली करना है या कोई और चीज खाली करनी है, उसको कहते हैं वैकेट। इसी वैकेट से वर्ड आया है वैकेंसी, ठीक है। चौक होता है रोड का, दैट इज द क्रॉसिंग, मीन्स four rods, three or rods are together, that is the crossing. When you are feeling a positives for something or a compassion, that is the sympathy, सहानुभूति। जब आप बीज बो रहे हैं तो बीज बोने को कहते हैं शो, SOW। When you are going with someone, साथ जाना, accompany होता है। If you are feeling your mistake and feeling sad, that is the repent, means पछताना। पार्डन और फॉरगिव, क्षमा करने के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन अराइज होता है कि वेयर वी यूज द पार्डन एंड वेयर वी यूज द फॉरगिव। इन माय ओपिनियन फॉरगिव इज रिलेटेड टू द फॉरगेट, ठीक है, कि फॉरगेट कर दिया, भूल गए, ठीक है। भूल के उसको क्षमा करना, ये अपने आप में फॉरगिव है। और वैसे ही क्षमा कर दिया लेकिन स्टिल यू रिमेंबर द थिंग्स, दैट इज द पार्डन। एंड समटाइम्स पार्डन का मतलब क्षमा मांगने के लिए भी होता है, कि जैसे इफ आई एम सेइंग समथिंग एंड इट इज नॉट
clearly understood by you, you can say pardon, pardon. जब भी आपको कोई पार्डन कहे तो इसका मतलब ये है कि जो चीज भी आपने कही है, जो आपने उसको कहना चाहा है, द मैसेज इज नॉट कन्वेड प्रॉपरली, दैट्स व्हाई ही इज आस्किंग और शी इज आस्किंग टू रिपीट इट अगेन। ओके, तो फॉरगिव और पार्डन का मीनिंग क्लियर है आपको? आई थिंक सो। सो नाउ वी विल लर्न द न्यू वर्ड्स, particularly animals name or their children name. घोड़े का बच्चा, हॉर्स चाइल्ड, कॉल्ट। बछड़ा, मेल चाइल्ड ऑफ काउ, काफ। एल साइलेंट है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एल के बाद अगर एफ है तो एल साइलेंट है। फान, ऑन फान, हिरण का बच्चा मिस चाइल्ड ऑफ डियर। लोमड़ी, विक्सन, भेड़ का बच्चा, सिप चाइल्ड, sheep child, lamb, horse female, घोड़ी, mare, combination of donkey and horse, mule. Mule is hybrid, hybrid of donkey and horse. And you must have find khatumal. Most of the time you can find in the court, खाट, खाट वगैरह में होते हैं, ठीक है। और जो जानवर होते हैं, particularly dog and cats, the insect in their hair is flea, पिस्सू उसको बोलते हैं। जू हो जाती है बालों में, मेरे तो हो नहीं पाएंगे, थोड़े हैं वो है लाउस। लाउस का एक विशेष ध्यान रखना बेटा दोस्तों, लाइस, LICE। लाइस जब वर्ड दे रखा हो तो ये जू ही होता है, लेकिन ये प्लूरल होता है। द प्लूरल ऑफ लाउस इज लाइस। मेंढक, ठीक है। फ्रॉग, फ्रॉग्स चाइल्ड मीन्स द बिगिनिंग स्टेज, बिकॉज frog takes 4 or 5 stages in developing. So the beginning point of the frog is tadpole, यानी कि मेंढक के बच्चे को tadpole कहते हैं। I think it is clear to you, or you must repeat, revise, and you must use these sentences, these words into your sentences if you really you want to improve. Okay friends, thank you, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज। थैंक यू, नमस्ते।